Okay. So I think this, Sweta already provided you the link of Hexoda LP, right? And you downloaded LP box or not? Hello? 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 No, we haven't downloaded yet. Still you okay? So when will you will download the LP box? Because today we'll conduct on LP like Linux privilege escalations topic. Hello, Vishal. Huh? Hello? Hello? We have to conduct today's lecture on Hacksudo LPE. So you have to download this box first, otherwise you cannot practice. Sorry? Wait a minute. There is some mic issue in for online from Abhibhai. He's joining again. Can you send me message or can you put here? What are you talking about? Vishal Abhibhai has downloaded it, so we can practice. No issue. Okay, all right, all right. यहाँ पे ना स्टेटस में पेंडिंग दिख रहा है, अभी वो समझ में नहीं आ रहा हुआ है कि नहीं। Okay. So do you have an idea on like what is Linux privilege escalation? Because we already taken some lectures on Linux privilege escalation, right? So let me show you this platform, LP platform, where I put some challenges. So for that you need to log in first, and login credentials I had put here in source code, right? So just right click on here, click on the view page source code, then you will get this page. Here you can see username is admin, the password hack sudo. Okay.
Okay. So after login here, board, correct. LP dashboard. Here you can select number of challenge number 1, 2, 3 to 8. So in challenge number 1, there are pseudo abusing challenge. Pseudo abusing challenge, you already know that, right? So I think so. Sohail or someone like Spider already solve this problem or challenge. Correct. AP ticket abusing, ERP abusing. So you have to just click on the AP ticket abusing button, and there you will get a SSH access login details. Okay. Okay. So APT I get abusing challenge, and the user is this, password is this. Just click on the browser console, login here. User one and password. So I just put here some terminals, or you can say like shell. Just go through here and find flag. So I think so this user is user one, and the meaning of privilege escalation is what? To switch user into high privilege user access. So for that you need to find the privilege, right? Which privilege given by root to this user one. Correct. क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं निकलती हूँ, चल। There was a problem resetting your PC. Cloud ला जो काही असेल ना ते तिथून reset होत असेल तर ते आपण परत बाकीच्या काय म्हणजे का तुमचं बॅकअप आहे म्हणजे डायरेक्ट वॉइस टाकायला
हेलो। हाँ सॉरी गाइस फॉर डिस्टर्ब यू। हाँ मैं वापस से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सो वी ऑलरेडी लर्न हाउ व्हाट इज प्रिविलेज escalations, and I just hosted my Hacksudo LP box on VirtualBox, right? The IP address of my system is my target system is 192.168.1.6. Okay, so when I open it on browser, it asks me for login credentials, user and password. So username is, I think so. I already told you how to find username and password. It's user like admin, and password is hacksudo. Okay, hacksudo. Once you log in here, you will get a dashboard. All right, you will get a dashboard. Okay, this one. डैशबोर्ड पे यहाँ पे चैलेंज 1 से लेके चैलेंज 8 तक है, 8 चैलेंज है, एंड each challenge having specific privilege escalations. First having the pseudo abusing challenge, and I guess I put here 30 challenges. So if you want to know how to abuse or how to get a privilege using the apt get abusing, or how to get a privilege using curl abusing, then you can go through this, right? But you cannot like click on the IPO abusing and hack this all. No, you have to start from first challenge, apt get abusing से हमें start करना है, फिर जाके वो पेज open होगा. Once you get a flag, then you need to submit this flag here. After that you will get a next challenge access till not. अब यहाँ पर मैं ARP abusing के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये abusing ओपन, या जो ये चैलेंज ओपन नहीं होगा, कोई भी चैलेंज ओपन नहीं होगा जब तक हम लोग फर्स्ट वाला चैलेंज कंप्लीट नहीं करते हैं. तो when I click on the first वाला challenge, it show me that you need to like log in. The user is user1 and password hacksudo. Okay, so where I need to put this user and password, just click on the browser console. आपको ब्राउजर कंसोल मिलेगा, यहाँ पर आपको टर्मिनल एक्सेस मिलेगा. ओके, ऑलराइट. you can get access from terminal also, like type your SSH user1 and enter. It asks you password is hack sudo, simple. Okay, you got access. All right, now नेक्स्ट एपिसोड. अब यहाँ पे मैंने ब्राउजर पे क्यों दिया है, हम लोगों ने थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाया ये मशीन. क्यों? कभी कभी क्या होता है कि लोगों के पास सिस्टम नहीं होगा, या कोई मोबाइल से कर रहा है, सीखने की कोशिश कर रहा है लिनक्स प्रिविलेज एस्केलेशन, उनके लिए मैंने ब्राउजर कंसोल क्रिएट करके दिया है, जो कि लाइक कोई भी इस मशीन को वर्चुअल बॉक्स से, ऑब्वियसली भी वर्चुअल मोबाइल से तो नहीं कर सकता, जो वर्चुअल बॉक्स पे इस मशीन को रन कर रहा है तो ऑब्वियसली उनके पास ये हो सकता है. बट कभी कभी ना कॉन्फ़िगरेशंस कम होगा, सिस्टम का लैक होने का प्रॉब्लम होता है, बहुत बार होता है बच्चों का, स्टूडेंट्स का. तो उसकी वजह से आई जस्ट पुट हियर कंसोल, ब्राउजर कंसोल, जो कि एकदम फ्लेक्सिबल है एंड फास्ट रहेगा. ओके, ये है मेरा ये. अब हाउ टू सॉल्व दिस अब्यूजिंग, apt get abusing, जस्ट ओपन योर GTF bin ये वाला GitHub का पेज, टाइप हियर apt get राइट एंड sudo. अब ऐसा नहीं है, हमें सबसे पहले क्या करना होता है, यू नीड टू फाइंड कि हमें एक्सेस तो मिल जाता है कोई भी यूजर का एक्सेस, बट हाउ टू फाइंड विच प्रिविलेज और विच प्रिविलेज एस्केलेशंस वी नीड टू फायर हियर और वी नीड टू यूज. तो हमें कौन सा प्रिविलेज एस्केलेशन यूज करना चाहिए ये हमें पता नहीं है. तो वो जो है वो पाथ में आपको बता देता हूँ वो कैसे करना है. उसके लिए देखो, यहाँ पे प्रिविलेज एस्केलेशन है लिनक्स, and now you can see number of privilege escalation in Linux का kernel export, program running root, install software, weak
और रीयूज प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड, ओके ये सब है। इवन यहाँ पर एक फाइल है ओके जो कि लिनक्स enum.sh नाम की फाइल है ओके। अब ये जो फाइल है, जब भी आपको एक्सेस मिलता है किसी सिस्टम का, नॉर्मल यूजर का, जस्ट क्लिक हियर और जस्ट कॉपी दिस फाइल, कौन सी, लिनक्स enum.sh वाली। इसका रॉ फॉर्मेट में जो भी है डेटा डिटेल, या आप इस लिंक को कॉपी करो और यहाँ पे टेम्प में डुप्लीकेट करना ओके। ये हो गई फाइल डाउनलोड। कहाँ पे, लिनक्स enum.sh फाइल हमने हैक किए हुए सिस्टम पे डाउनलोड कर लिया, यूजर 1 पे। नाउ फायर और रन दिस फाइल, हाउ, just type bash and linux enum.sh, it will be run। अब ये क्या दिखाता है, इसका आउटपुट हमें डाउन ये करना होगा, तो फिर मैं शायद हाइपर या ग्रेटर देन से में या उसका आउटपुट बाहर निकाल, हम लोग मतलब आउटपुट उसका निकाल सकते हैं। out.txt जो भी हमें यहाँ पर दिखेगा वो सब out.txt में वो दिख जाएगा ओके। अब देखिए यहाँ पर क्या दिखा है उन्होंने, sudo वर्जन फाइंड किया या अपाचे यूजर कॉन्फ़िगरेशन देखा है। इवन उन्होंने इंफॉर्मेशन देखी, यूजर व्हाट इज यूजफुल फाइल लोकेशंस, इट्स अ wget json कर्नल, सो यूजफुल। इंस्टॉल्ड कंपाइलर है क्या वहाँ पे, या ऑफ कोर्स देयर इज gcc कंपाइलर। रीडेबल फाइल है क्या, हाँ, लाइक etc password इज अ रीडेबल फाइल। और Bishop, please accept Sohail bhai. He is Sorry? waiting. हेलो, Hello, accept Sohail bhai. आई कैन नॉट एक्सेप्ट सोहेल सर। ठीक है, श्वेता को आप मैसेज कर सकते हो। Okay, okay, I am texting Shweta. Alright, so what I'm talking about कि once you fire linux enum.sh file, okay, an output will be here, right? Let me do cat .txt. So here I got a whole output. What enumerations linux enum file done is this. So क्या क्या information हमें मिल जाती है इसमें, ये सब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। more okay, so I guess SUID इंफॉर्मेशन है, ऐसे GID है। अभी यहाँ पे रेड कलर में दिखेगा तो देन उसे समझ लो कि प्रॉब्लम है कुछ ओके ओके। प्रीवियसली आई यूज्ड दिस कमांड, दैट कमांड आल्सो इट विल शो, राइट? सो बैकअप फाइल भी यहाँ पर दिख रहा है एंड इवन what is kernel information. Kernel is 4.19 and the Debian 4.19, right? 2021. So if you want to try to find or try to exploit kernel, just go to copy this kernel version, search it on Google, find if there is exploit, if there is like any exploit related about this version, then go ahead and exploit this kernel and get a root access. Simple. So next step is what specific release information. क्या स्पेसिफिक जो इंफॉर्मेशन होती है सिस्टम की, वो इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमें मिल जाती है ओके। तो लाइक डेबियन सिस्टम है ये, और वर्जन इज 10, बस्टर्ड, और होस्ट नेम इज hacksudo lpe ओके। ये इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे जो दिखने को मिलती है, इसमें से हमें मलेशियस या जूसी काइंड ऑफ थिंग्स हमें ढूंढनी है। तो सुपर यूजर इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्या है, रूट है। सुपर यूजर इज अ रूट, सो वी कैन sudo without supplying the password by using this command. So ये इंफॉर्मेशन हमें क्या मिली है, इंफॉर्मेटिव मिली है। what like you can fire this command and get a root access, or you can fire this command instead of as like root, या आप apt-get यूज करते हो
तो ऑब्वियसली आप जो यूजर हो वो यूजर एज अ रूट उस कमांड को एग्जीक्यूट कर सकता है. So the user one may run the following command on these machines as a root. So I get some important informations, and even it show me other information also. Okay, let me skip this all now. Sudo -yal, boom. I think so I can execute apt-get command without password, but as a root. So whether I put sudo apt-get and change log apt command. So यहाँ पे हमें क्या पूछा है? It ask me for like console command. So यहाँ पे हम लोग कुछ कमांड टाइप कर सकते हैं. मैं यहाँ पे अभी कमांड टाइप करना चाहता हूँ !bin/bash. So bin bash is nothing but shell. Okay. So one second, I'm like doing this thing again. Okay. Sudo apt-get change log apt. Okay, this command is used to execute another command instead of apt-get. इसके थ्रू हम कोई अदर कमांड भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं. मैंने एंटर किया, it asked me for input. Okay, input क्या देना है? new shell bin bash. तो मैंने एंटर किया, तो वहां पे मुझे क्या एक्सेस मिलता है? बिन बैश मतलब नया शेल. बट नया शेल तो मिल जाता है, बट कौन से यूजर का मिलता है? रूट यूजर का मिलता है. अभी ये आपका हुआ है. तो ये आईडी मैंने टाइप किया, मैं रूट यूजर, और पहले क्या था? यूजर 1 था. तो ये क्या है? ये यूजर को स्विच करने का तरीका है, जिसे हम लोग प्रिविलेज एस्केलेशन बोलते हैं. अब इस मशीन में इस मशीन में मैंने जितने भी प्रिविलेज एस्केलेशन दिए हैं वो सब यूजफुल है. अब यहाँ पे मैं वापस से प्रिविलेज एस्केलेशन के मेन टॉपिक पे लेके आता हूँ कि enum फॉर लिनक्स या enum linux.sh जो फाइल है वो अपने आप इन्यूमरेशंस करके कहाँ पर प्रॉब्लम है वो फाइंड करके आपको दिखाएगी. ठीक है, बट आप मैन्युअली करना चाहते हो तो यू कैन गो एंड यूज दिस. कर्नल एक्सप्लॉइट ढूंढने के लिए क्या कमांड है? uname-a, या यू कैन टाइप cat proc version और cat etc issue command और etc और release command. ओके, जैसे कि हम लोग यहाँ पर टाइप करते हैं, एक सेट करता हूँ मैं. ओके, मैंने cat किया proc and version. Okay, so it shows like kernel version, correct? And even you can type here etc, I don't know पूरा नाम क्या है और रिलीज फाइल का. सो आई जस्ट पुट हियर रिलीज कमांड या रिलीज फाइल नेम. ओके, तो यहाँ पे मुझे उस डेबियन सिस्टम की इंफॉर्मेशन मिल जाती है. इवन हम यहाँ पे ये भी टाइप कर सकते हैं etc issues. ओके, डेबियन. ओके, ये डेबियन ये इतना ही मिलता है. अब ये जो है यहाँ पे आईपी का डिस्प्ले होने के लिए मैंने कुछ ऐड किया, तो ये ज़रूरी नहीं कि क्या इसमें क्या टाइप किया है. ये जो फाइल है, इस फाइल में क्या होता है? कर्नल की इंफॉर्मेशन या सिस्टम की इंफॉर्मेशन. तो कर्नल को हैक करना है या कर्नल को एक्सप्लॉइट करना है तो इन कमांड्स को हमें यूज़ करना है. सो हाउ टू यूज़ सर्च एक्सप्लॉइट. और उसके बाद आगे क्या? चलो ठीक है, मुझे पता चला है कि the system's kernel version number is something 4.3 or 4.19. अब इस वर्जन के रिलेटेड कोई एक्सप्लॉइट अवेलेबल है कि नहीं वो देखना है हमें. तो वो कैसे देखें? काली सिस्टम में इनबिल्ड क्या होता है? एक डेटाबेस है जिसे हम लोग सर्च एक्सप्लॉइट बोलते हैं. सर्च एक्सप्लॉइट मैंने यहाँ पर टाइप किया 4.19. ओके, एंटर. तो 4.19 कर्नल के रिलेटेड जितने भी एक्सप्लॉइट है
वो हमें यहाँ पे वो शो करेगा। ओके, डेटाबेस विल बी शो यू all exploits available on kernel 4.19 पे जितने भी है देखो यहाँ पर मिल जाते हैं। बट अभी इसका वर्जन क्या पता हमें, सॉरी जो डेट होती है 2019 2016, वो हमारा जो है वो एकदम नया है, 2022 है। तो हम गूगल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब गूगल पे जाने के लिए क्या करना है, एक्सपर्ट डीबी के ऊपर आपको क्या सर्च करना है, उस कर्नल का वर्जन, इस तरह से इस फॉर्मेट में। ओके, या लिनक्स प्रिविलेज चेकर डॉट py फाइल अवेलेबल है गूगल पर, डाउनलोड दिस फाइल, करेक्ट, एंड यूज दिस। जिस तरह से कर्नल के रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन्यूमरेट करनी है और एक्सप्लॉइट करनी है, तो इस तरह से हम लोग करते हैं। लास्ट लेक्चर में कर्नल एक्सप्लॉइटेशन हम लोगों ने टॉपिक लिया था। उसके बाद MySQL में इश्यूज होगा, तो MySQL को एक्सप्लॉइट करने के लिए आप वहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लाइक सिलेक्ट। MySQL के अंदर आप इंटर करते हो और उसके बाद आप सिस्टम एग्जीक्यूट करते हो who am I। उसने आपको आउटपुट दिया कि who am I कमांड का, देन यू कैन पुट हियर योर शेल लाइक /bin/bash, और यू कैन पुट हियर लाइक कमांड यूजर etc/shadow फाइल को कैट करना, वो भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो, या chmod आप देख सकते हो, suid परमिशन दे सकते हो /bin को। /bin को suid परमिशन देने के बाद जो bin होता है /bin/bash फाइल, वो कोई भी एग्जीक्यूट कर सकता है तो रूट, फिर आप उसमें रूट एक्सेस करके रूट ले सकते हो। तो MySQL का भी होगा, तो ये कमांड आपको यूज करना है। हाउ टू फाइंड MySQL इश्यूज और MySQL privilege escalations, ऑब्वियसली लिनक्स enum.sh फाइल्स है। ओके, यहाँ पे यूजर इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर होगा कोई भी, जैसे कि मैं ये इंस्टॉल किया हो मेरे सिस्टम में स्काइप, ठीक है, या और कोई टूल है जो इंस्टॉल्ड है, टॉर है, तो वो जो होता है वो यूजर लोकल फाइल में इंस्टॉल होता है। ओके, या आप dpkg-l से भी देख सकते हो कौन से थर्ड पार्टी टूल इंस्टॉल है, और उस फाइल्स को हम लोग यूज कर सकते हैं क्या, और यूज कर सकते हैं तो क्या हम लोग उस फाइल का यूज करके रूट में जा सकते हैं, तो इसके लिए ये कमांड है। ओके, अब कभी कभी क्या होता है कि रीयूज हम लोग कर सकते हैं पासवर्ड, ऑलरेडी कहीं पे पासवर्ड स्टोर हो सकते हैं, या हम लोगों ने किसी वेबसाइट उसकी उस वेबसाइट की लाइक वेबसाइट हैविंग द कॉन्फ़िगरेशन फाइल और कनेक्टिविटी डेटाबेस कनेक्टिविटी फाइल, just go through there and find the user and password which you can use or not. So if possible you can use user and password and try it. Okay, ये भी एक होता है चैलेंजिंग। ओके, या मेल सर्वर हमें हम लोग हैक करते हैं तो मेल सर्वर में भी पासवर्ड्स होते हैं, तो ये सब क्या है, ये इन्यूमरेशन टॉपिक्स है। ओके, और यहाँ पे फर्स्ट वाला जो टॉपिक है हम लोगों ने प्रिविलेज एस्केलेशंस कर लिया। ओके, यू विल गेट अ फ्लैग। कहाँ पे फ्लैग मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ, /bin/bash एंटर। रूट मिलने के बाद आपको सीधी रूट में जाना है। ओके, रूट में वहाँ पे root.txt फाइल है, cat it willow hacker, ये क्या है, फ्लैग है। कॉपी दिस फ्लैग, पुट हियर एंड सबमिट। सो उसके बाद लाइक इट विल शो यू सक्सेसफुल कंप्लीटेड चैलेंज 1। ओके, नाउ चैलेंज 2 टाइम, टेक योर नेक्स्ट चैलेंज, क्लिक ऑन दिस। अब यहाँ पर क्या चैलेंज है, ARP अब्यूजिंग। ऑब्वियसली ये ARP अब्यूजिंग भी इजी है, जैसे आपने लास्ट टाइम किए थे गिटहब यूज। ARP टाइप करो, sudo privilege। ओके, आपको क्या करना है, कोई भी फाइल ARP अब्यूजिंग sudo का है, तो sudo का यूज यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई भी फाइल यू कैन रीड, एनी फाइल यू कैन रीड यूजिंग ARP abusing। Just copy sudo ARP-v-f and which file you want to read, यहाँ पे उस फाइल का नाम दे दो। ओके, मैंने क्या किया, कॉपी। हम लोग यहाँ पे आते हैं
और etc shadow करते हैं। ओके ये तरह से। अब ये मैं वहां पर नहीं गया, मैंने इसे बना यूजर टू, हाँ ये यूजर टू है। ओके sudo etc shadow, ये रीड हो रही है। नाउ वंस यू गॉट अ hashes, रूट का हैश, बहुत सारे हैश है, ठीक है। ऑल यूजर का हैश, ऑल यूजर के हैश है, यहाँ से आप सभी यूजर्स में लॉगिन कर सकते हो। तो ये रूट का हैश इसे कॉपी करना है जॉन द रिपर या पासवर्ड क्रैकिंग से आपको उसको क्रैक करना है, रूट में जाना है, ठीक है। यू कैन रीड दिस फाइल, विच फाइल, root/root.txt योर फ्लैग, करेक्ट। तो आपको फ्लैग ही ढूंढना है तो रूट में जाने की जरूरत नहीं, ये मिल गया फ्लैग, कोई भी आप एक्सेस कर सकते हो, तो ये मिल गया फ्लैग। नाउ नेक्स्ट इज सबमिट दिस फ्लैग, सबमिट, यू सक्सेसफुल कंप्लीटेड चैलेंज नंबर 2। ओके अब चैलेंज नंबर 3 पे आते हो आप, राइट। अब यहाँ पे कंसोल से भी जा सकते हो या मैं टर्मिनल से जा रहा हूँ वैसे भी आप जा सकते हो। अब ये AWK के अब्यूजिंग कैसे करना है, जैसे क्या है कि लाइक आप लोग को ऑल चैलेंजेस कंप्लीट करने, बेस 32 होगा तो कैसे। अब ये चैलेंजेस क्यों कंप्लीट, व्हाई दिस चैलेंज, व्हाई, बिकॉज सपोज आप किसी सिस्टम को हैक किए हो, सर्वर सिस्टम नेटवर्क को हैक किए हो, आपको किसी वेबसाइट के थ्रू सर्वर का एक्सेस मिल रहा है एंड उस सर्वर से, अब जैसे कि मैं हैकर हूँ, आई एम अ बैड पर्सन, ठीक है, एंड मैंने किसी बैंकिंग वेबसाइट को हैक किया है और SBI बैंक को मैंने हैक किया, ओके। अब SBI बैंक जो इंडिया के SBI बैंक है उसे हैक करने के बाद मुझे समझ में आ रहा है कि आई कैन गेट अ शेल एक्सेस जो कि टर्मिनल एक्सेस होता है, एंड बट आई गॉट लाइक नॉर्मल यूजर एक्सेस, डेमन एक्सेस है जो कि www डेटा यूजर एक्सेस है, वेबसाइट एक्सेस। अब उस यूजर के थ्रू मैं रूट तक नहीं जा सकता, मुझे पूरा फाइल एक्सेस नहीं, आई डोंट हैविंग द फुल एक्सेस। नाउ व्हाट आई विल फाइंड लाइक लूपहोल या छोटा सा एक्सेस ढूंढूंगा जिससे मैं रूट तक जा सकूं, मैं प्रिविलेज एस्केलेट करने की कोशिश करूंगा। अब कितने सारे मेथड्स हो सकते हैं वहाँ पे प्रिविलेज एस्केलेशन के रूट तक जाने के लिए, ये सब मैंने जितने भी पॉसिबल है आपको दिखाया है। ये एक आपको कर्नल एक्सप्लॉइटेशन पता है तो उससे नहीं होगा, कर्नल एक्सपर्ट या रूट प्रिविलेज आपको ऑलमोस्ट ज्यादातर पता होना चाहिए, ओके। तो इसमें सूडो जो टॉपिक है ये मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है, ठीक है। अब वंस यू कंप्लीटेड ऑल चैलेंजेस, सूडो में मैंने बहुत सारे चैलेंजेस रखे हैं और ये इजी है, इतने भी हार्ड नहीं है, ओके। गिटहब GTF पे जाना है, यहाँ से आपको कॉपी पेस्ट करना है। हेलो विशल, हेलो, हाँ first you browse some GitHub page and you found linuxenum.sh file, right? सॉरी, Hello. हाँ हाँ बोलो। You use some linuxenum.sh file, right? हाँ। Basically we use this file to find some vulnerability. हाँ, और हम कैसे कर सकते हैं? you can use this file for finding the vulnerability only. Okay. And also also we see some PDF document or some website document where we yes we use this document also. हाँ, let me clear. Okay, let me clear. Right. So ये जो है ये मैन्युअल इन्यूमरेशन है, मैन्युअली, ओके। तो यहाँ पे मैन्युअली आप एक एक कमांड को समझ सकते हो, एक एक प्रिविलेज एस्केलेशंस को कैसे इन्यूमरेट करता है ये समझ सकते हो। कर्नल एक्सप्लॉइट करना है तो उसके लिए क्या है, ये मैन्युअल है। यू कैन पुट uname -a in terminal and find the versions number, okay। so ये मैन्युअल है, बट लिनक्स enum.sh फाइल आप कॉपी करते हो और टर्मिनल पे उसे फायर करते हो तो ऑल टाइप ऑफ इन्यूमरेशंस विल डन, ओके, ऑल इंफॉर्मेशन विल शो यू
राइट एंड got it. हाँ, और फिर हमें क्या चाहिए, फिर उसमें से ढूंढो कि कौन सा प्रिविलेज एस्केलेशन यूजफुल है जिसको हम लोग एक्सप्लॉइट करें और प्रिविलेज एस्केलेशन या रूट तक हम लोग जा सके। तो ये ऑटोमेटिक स्क्रिप्ट है इन्यूमरेशन की एस्केलेशन करने के लिए। ओके, ये डिफरेंट। Okay, ओके, got it. हाँ, इवन यहाँ पे आपको लिनक्स प्रिविलेज चेकर का भी फाइल दिया है, वो भी आप यूज कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज SUID अब्यूजिंग। यहाँ पे भी सेम ही है, जैसे कि डेट अब्यूजिंग मैंने यहाँ पे कुछ दिया है। अब ऑब्वियसली आपको कोई भी आप ऐसे रैंडम नहीं सिलेक्ट कर सकते। कौन आया? तो यहाँ पर आप कोई भी सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं रैंडम। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले वाला सिलेक्ट करना है, यूजर 31 को हैक करना है, उसका फ्लैग यहाँ पर सबमिट करना है, देन उसके बाद We have to try this step by step. सॉरी, We have to try this step by step, and also we have to submit flag. Then the next will open. एग्जैक्टली राइट। और तो ये आप सिलेक्ट मतलब कंप्लीट कर दो SUID। तो उसके बाद चैलेंज नंबर 3 है कैपेबिलिटी। ओके, तो कैपेबिलिटी के बारे में हम लोगों ने नहीं लिया है कोई भी टॉपिक, करेक्ट? Right. हाँ, तो कैपेबिलिटी इज नथिंग बट SUID, वैसे ही है, सेम ही है, बस उसमें डिफरेंट क्या है कि कैपेबिलिटी ढूंढने के लिए कुछ कमांड होता है। ओके, तो वो कमांड हमें वहां पर फायर करने हैं। एक सेकेंड, कैपेबिलिटी आपको एक ईमेल आईडी देता हूं, उस पे मेल करिए ना, मैं भी आपको इमीडिएट आपको रिवर्ट दे रहा हूं। ओके, तो कैपेबिलिटी क्या है, सिमिलर SUID की जैसे ही है। मतलब आपको कैपेबिलिटी, आपके पास पावर होता है उस फाइल के पास कि वो नॉर्मल यूजर भी एक्सेस कर सकता है, बट वो रूट का होता है। बट जब नॉर्मल यूजर उस फाइल को एक्सेस करता है तो वो एज अ रूट समझ के उस फाइल को एक्सेस करता है। ओके, अब व्हाट इज कैपेबिलिटी? तो वो अभी जिस मैंने बताया, नॉन प्रिविलेज यूजर कैन एग्जीक्यूट और कैन प्रोसेस फॉर द पर्पज ऑफ परफॉर्मिंग द परमिशन चेक। यहाँ पर हम लोग को एक्सेस मिलता है रूट का। ओके, सो उसी को अब यूज करेंगे। ये सिमिलर है SUID जैसा है। ओके, ये सेट UID जैसा आता ही है। अब उसे ढूंढना कैसे, ढूंढने के लिए एक कमांड होती है, छोटी सी कमांड। पहले हम लोग क्या करें, ये होती है कमांड। ओके, अब उससे पहले हमें क्या करना पड़ता है कि उसे जैसे हम लोगों ने लैब सेटअप किया था SUID का, वैसे इसका भी लैब सेटअप करना पड़ता है। किसी भी फाइल को कैपेबिलिटी परमिशन देनी है तो हमें सेट कैप करना पड़ता है। कैपेबिलिटी क्या करनी पड़ती है, सेट करनी पड़ती है। कौन सी? कैप, सेट UID परमिशन। अब यहाँ पर अलग अलग परमिशन होती है कैपेबिलिटी के लिए। तो जिस फाइल को कैप सेट UID परमिशन होती है, उसी फाइल को हम लोग अब्यूज कर सकते हैं। नहीं होगी तो फिर नहीं कर सकते हैं। ओके, शायद अभी यहाँ पे कैपेबिलिटी में वैसा ही कुछ है। लेट मी चेक कैपेबिलिटी वाला। चैलेंज नंबर 3। ओके, GDB। ओके, यूजर 46 है। लॉगिन करेंगे, पासवर्ड हैक सुडो। ओके, हाउ टू फाइंड। अब यहाँ पे मैंने ओके, यहाँ पे कैपेबिलिटीज नाम का समथिंग है कुछ। CD। ओके, जैसे यहाँ पर बहुत सारे फाइल है, RIP1 RIP10 2, बहुत सारे फाइल है। पता नहीं कौन से फाइल में क्या, सॉरी फोल्डर से पता नहीं कौन से फाइल में क्या है। तो एक सिंपल, हम लोग सब कुछ नहीं ढूंढेंगे, SUID भी नहीं ढूंढेंगे, sudo भी नहीं ढूंढेंगे, कुछ नहीं। हमें पता है हमें चैलेंज कौन सा करना है, कैपेबिलिटी। तो कैपेबिलिटी को इन्यूमरेट करने के लिए क्या कमांड है,
गेट कैप -r/to देवनाथ। अब इसमें से एक सेकंड, हाँ, गेट कैप हमें क्या ढूंढना है, कैपेबिलिटी परमिशन। ओके, कैपेबिलिटी परमिशन ढूंढनी है अंडर द स्लैश, और ये आउटपुट देगा हमें, यहाँ पे देखने को मिल जाएगा क्या है क्या नहीं। तो जैसे कि मैंने फायर किया, इट शो मी देयर आर 2 फाइल्स, वन इज GDB एंड सेकेंड वन इज पिंग। तो जो पिंग फाइल है, पिंग ऑब्वियसली हर एक सिस्टम में कैपेबिलिटी परमिशन होती है उसे रॉ फॉर्मेट की। ओके, ये एंड ये यूजफुल नहीं है हमारे लिए। तो यूजफुल कौन सा है, setuid वाला फाइल। अब setuid वाला कैपेबिलिटी है किस फाइल को है, फाइल इज GDB। फैक्ट्री ओके, बदलापुर बदलापुर, नहीं ये तो है। ओके, तो यहाँ पे सॉरी, हाँ, यहाँ पे क्या है, फाइल GDB फाइल इज इन /home users 46 capabilities, RIP RE4 hack 8 and this file। तो मैं यहाँ पे चला जाता हूँ CD and enter। Here you can see file, and when I type a ls-la command, it show me that file having this permission, but यहाँ पर s permission हमें नहीं दिखने को मिलती है। ठीक है, now what you can again type git cap -r, alright, -r and GDB। तो उससे क्या पता चला कि GDB फाइल having cap setuid permission, एंड या जिस फाइल को कैप setuid परमिशन है उसी का यूज करके आप प्रिविलेज को अब्यूज कर सकते हो। हाउ, अब GDB को कैसे अब्यूज करना है पता नहीं। ओके, आई डोंट नो। ओके, ऑलराइट, इट्स ओके, एंड क्लिक ऑन GTF of beans, type here GDB and capability tab। ओके, सो कैपेबिलिटी में क्या है, इतना सारा रेड कलर में जो बताया है, जस्ट फॉलो दिस थिंग। CP क्या करना है, ये इसको हटा दो। ओके, ये बेसिक है। हमें क्या करना है, सेट कैप और CP ये दोनों को यहाँ से इग्नोर करना है, ये सेटअप करने के लिए है। देखो, अब जिसको पता है कि हाउ टू सेटअप कैपेबिलिटी परमिशन, अब यहाँ से लेके समझ सकते हो कि नहीं, इस फाइल्स या इस कमांड को हमें यूज नहीं करना है एक्सप्लॉयटेशन के लिए, इसको तो हमें लैब सेटअप करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, सो इग्नोर दिस थिंग। करेक्ट। नाउ जस्ट फायर दिस कमांड और कॉपी दिस कमांड एंड लाइक टाइप हियर, एंटर। ओके, वी ऑर्डर रूट एक्सेस, बैश टाइप किया मैंने, बूम, वी ऑर्डर रूट एक्सेस, डन। सो इस तरह से हमें क्या करना है कि कैपेबिलिटी को भी हैक करना इजी है। ठीक है, कैपेबिलिटी ढूंढना कैसे, सिंपल है। अब मुझे रूट में जाना है, और आई थिंक सो देयर आर फाइल फ्लैग इज बिलो है का सेम, हर एक का सेम ही है, ये आप नोटिस किए होंगे। तो जस्ट कॉपी दिस फ्लैग, सबमिट हियर। नेक्स्ट चैलेंज इज 47 का चैलेंज क्या है, su hack sudo user, sorry, su user 47 hack sudo password, and again let's check git cap -r/2/dev/null, enter। लेट्स सी यहाँ पे क्या है, अभी नोड नाम का एक फाइल है, पता नहीं क्या है, नोड क्या है, नोड का यूज कैसे करते हैं, आपको पता होगा JS नोड है या कुछ और वाला नोड है, दैट आई डोंट नो, आई डोंट हैव एन आइडिया, माइट बी ओके, कुछ और हो सकता है। सो लेट मी एक्सिक्यूट दिस। एक्चुअली क्या है देखें, परमिशन डिनाइड,
ओके परमिशन नहीं है, तो वाई परमिशन नहीं है, पता नहीं क्या है वो, क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, नोड होगा यहाँ पे है, कैपेबिलिटी परमिशंस कैसे करनी है उसकी, ये है। ओके सो ये मैंने यहाँ पे अगेन टाइप किया एंड एंटर, परमिशन नहीं है। लास्ट पार्ट पर्यंत जेवढे पण लोक होते ना सगळे आम्हाला सीडी स्टार्टिंगला हेच ओके डन। शायद मैं कुछ गलत कर रहा था, आईडी डन। ओके तो ये यहाँ पर एकदम इजी है, ठीक है। आपको क्या फ्लो याद रखना है, हाउ टू इन्यूमरेट, हाउ टू फाइंड स्पेसिफिक प्रिविलेज। सो जो कैपेबिलिटी हो सकता है, तो कैपेबिलिटी के लिए कौन सा कमांड है, गेट कैप। एसयूआईडी होगा तो एसयूआईडी ढूंढने के लिए क्या कमांड है, ठीक है। लेट मी शो यू अगेन। एसयूआईडी होगा तो एसयूआईडी को कैसे ढूंढते हैं, लाइक यूजिंग द फाइंड। उसके बाद आपको टाइप करना है स्लैश हाइपन परम, ओके एंड देन हाइपन यू इक्वल टू यस। एस परमिशन ढूंढनी है यूजर के लिए, और जो कि टाइप होना चाहिए फाइल टू देव नल। ये कमांड से हम लोग क्या करते हैं, एसयूआईडी परमिशन होने वाले फाइल्स को ढूंढते हैं, करेक्ट। और एंड होगा फाइल, कोई फाइल होगा तो उसे हम लोग अब यूज करते हैं जीटी ऑफ बीन्स। यहाँ से हम उसे ढूंढते हैं कि क्या कमांड हो सकता है, ठीक है। ये एकदम इजी बता रहा हूँ मैं। सूडो का होगा तो सूडो के लिए हाइपन है, सूडो हाइपन एल करते हैं एंड देखते हैं कि हाँ कोई होगा सूडो अब्यूजिंग, तो उससे भी हम लोग अब्यूजिंग करेंगे। सपोज वहाँ पर होगा तो हम लोग वापस नेक्स्ट स्टेप ढूंढते कि वो जो पर्टिकुलर कमांड है उसे यूज करके अब्यूज करना है, तो एक्सप्लॉइट कैसे करते हैं, जीटीएफ पे जाओ, ढूंढो कि सूडो प्रिविलेज एस्केलेशन उस फाइल के लिए है कि नहीं, होगा तो क्या कमांड है। ओके नाउ नेक्स्ट व्हाट, कर्नल एक्सप्लॉइट। फॉर दैट यू टाइप uname hyphen am, okay, yeah, just copy this virtual and like search or the Google की escalator kernel exploit है कि नहीं, होगा तो search the exploit, copy entire code and copy paste here and you execute this, you will get a root access, simple। तो इस तरह से हमें बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं, या हम लोग समझ लेते हैं कि प्रिविलेज एस्केलेशन क्या हो सकता है। एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि कैसे हमें प्रिविलेज एस्केलेशंस हम लोगों ने किया था पाथ वेरिएबल अब्यूजिंग जैसा। तो व्हाट इज पाथ वेरिएबल, पाथ वेरिएबल इज नथिंग बट कि लाइक जैसे कि हम लोग कोई भी कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, कमांड विल बी फायर बिकॉज ऑफ लाइक बाइनरीज एंड द बाइनरीज लाइक पुट और द स्लैश बिन स्लैश यूजर फोल्डर, जो कि हम उसे पाथ वेरिएबल बोलते हैं। पाथ वेरिएबल का यूज करके हमें लास्ट टाइम जो एक्सप्लॉइटेशन किया था, रोड एक्सप्लॉइटेशन, वो याद है कि आपको? हाँ ओके। तो एक पाथ वेरिएबल एक्सप्लॉइटेशन था। उसके बाद जो चैलेंज नंबर 4 में आता है राइटेबल फाइल अब्यूजिंग। ओके सो हाउ टू फाइंड कि लाइक विच फाइल्स इज राइटेबल, तो लाइक पास डब्ल्यूडी फाइल अब्यूजिंग ये एक important points है। If anybody or a normal user can write the pass WD file, then you can put your new user information। Like जो हम लोगों ने लास्ट टाइम पास WD फाइल को एडिट करके एक नया यूजर और नया हैश ऐड किया था एंड उसे लॉग इन किया था। सो वैसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रूट को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ओके लेट मी शो यू हियर। SU user 555, password is hack sudo, okay, ls-la /etc pass wd,
So passwd फाइल राइटेबल है शायद. ओके, आई थिंक सो. सो नैनो etc passwd. Permission denied. Okay. अब्यूजिंग यहाँ पर शायद परमिशन मैंने नहीं रखा है. ये को नहीं रखा है, कोई बात नहीं. हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है, राइटेबल एक्सेस होता है passwd को. So as a normal user can put anything inside this passwd file. So instead of Vishal, you can like create a hash using the OpenSSL. Okay, OpenSSL passwd and all like -1 and then user and the password 1234 hash बन जाएगा. फिर उस हैश को आपको क्या करना है, उस फॉर्मेट में रखना है. किस फॉर्मेट में रखना है, लाइक इस फॉर्मेट में etc passwd. इस फॉर्मेट में आपका यूजर x की जगह पे हैश 00 ये सब एज इट इज रखना है और उसे यहाँ पर passwd में रिप्लेस करना है रूट के ऊपर. सो जो भी आप लोग यहाँ पर यूजर बना रहे हो उस यूजर को लॉगिन करते हुए रिसीव करके, सो वो यूजर लॉगिन तो हो जाएगा बट एज अ रूट उसे प्रिविलेज रहता है. ओके, सो आप जिस भी यूजर को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो, क्या यूजर UID 0, यूजर GID 0 and the रूट डायरेक्टरी हम उसे देते हैं. तो किसी भी यूजर को इंफॉर्मेशन हम लोग अटैच करते हैं passwd में, तो वो यूजर बन जाता है रूट. अब ये passwd फाइल मॉडिफिकेशंस परमिशन सिर्फ रूट को होती है. If normal user having the permission to modify the passwd file, then normal user can switch into root user simply. एकदम सिंपल तरीके से वो स्विच कर सकता है यूजर्स को, राइट. तो ये यहाँ पर दिया है passwd abusing में. And I think so there like a walkthrough are available over the Google, or you can find here writable passwd. ओके, यहाँ पर दिया देखो. हाँ, तो जो बेबी ने जस्ट अभी आपको बताया कि यूजर आपको बनाने का है लाइक. ओके, उसके बाद आपको GUID UID क्या होता है, 0 देखो. आप वहाँ पर एवरी यूजर मस्ट बी अलॉटेड टू यूजर ID. ओके, वॉट एवर समथिंग यूजर ID होगा 1000 से लेके स्टार्ट होगा या जो भी है, बट 0 जो होता है वो इज केप्ट फॉर द रूट यूजर ओनली. So any users having 0 user ID and 0 GUID, it means what this users belongs to root user. तो जो root user है ऐसे समझ लेगा सिस्टम को समझता नहीं कि ये यूजर कोड है. यूजर नाम रूट से नहीं वो कंसिडर करता, वो UID और GUID से सिस्टम कनेक्टिविटी होती है कि जो यूजर लॉगिन कर रहा है उसका UID क्या है 0. ओके, ये फिर रूट है. वो ये नहीं देखेंगे कि विशाल ने लॉगिन किया है ना. He will check what is UID and GUID. विशाल का लॉगिन UID मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर ऑन द स्पॉट, ठीक है. नैनो etc passwd. ओके, यहाँ पर क्या है, UID 0 GUID 0 और रूट का होल इंफॉर्मेशन ने कॉपी किया एंड सीधे हम लोग आते हैं हैक sudo यूजर पे. और क्या एक नया यूजर क्रिएट करते हैं, ठीक है. 1 सेकेंड.
ओपन SSL विशाल, मैं यूजर बनाता हूँ हैक्सर विशाल 1 2 3। ओके, ये हैश बन गया। लेट मी कॉपी दिस, इसमें यूजर भी है। ऑलराइट, अब ये यहाँ पे हम लोग ऐड कर देते हैं। ओके, और उसके आगे हमें ऐड करना है हैक्सर यूजर ने। ओके, अब ये मैंने सेव किया। नाउ मैं स्विच करता हूँ हैक्सुडो नाम से। नाउ मैं यहाँ पे हैक्सुडो नाम से ऐड हुआ हूँ, लॉगिन। तो सिस्टम क्या बताएगा कि सिस्टम UID is 1001 which is belongs to हैक्सुडो यूजर। ओके, एंड मैं एग्जिट करता हूँ। नाउ लॉगिन विथ रूट ID, राइट। मैंने ID टाइप किया, इट शो UID 0, इट मीन्स नॉट रूट। ओके, ऑब्वियसली मैं रूट यूजर लॉगिन हूँ, और ग्रुप ID also root and all everything is root। okay, now switch user हैक्सर। अब हैक्सर से तो मैं लॉगिन हुआ हूँ, या मैं वापस एक बार स्विच करता हूँ हैक्सुडो यूजर से, और यहाँ पे हम लोग स्विच करेंगे हैक्सर यूजर से। ऐसे हैक्सर पासवर्ड क्या था, विशाल 1 2 3, करेक्ट। नाउ टाइप ID कमांड, तो ये मुझे हैक्सर नाम से नहीं दिखाएगा, ये दिखाता है यू आर रूट, यू आर नॉट अ हैक्सर। ओके, यू आर रूट यूजर। तो उसने, सिस्टम ने क्या देखा, UID क्या है, 0 है, मतलब रूट है। GID क्या है, 0 है, मतलब रूट है। वो ये नहीं देखेगा कि यूजर कौन सा है। यहाँ पर यूजर स्पूफ हुआ है, बट समझ में आ रहा है ना, मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ये UID एंड GID वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये यहाँ पर उन्होंने बताया कि व्हाट इज UID एंड GID, and you can put your directories, home directory, whatever you want to put। okay, it doesn't matter, shell also you can put whatever you want to put, right। उसके बाद etc passwd जो है उसके बारे में बता रहे हैं हम लोग। राइटेबल etc passwd फाइल होगी तो आपको क्या क्या कंसिडर करना है। यू नीड टू कंसिडर लाइक दिस ऑल थिंग्स, देन यूजर नेम, इंक्रिप्शंस एंड ऑल। ओके, ये फॉर्मेट में आपको टाइप करना है। ओके, सो मेरा जो मेथड है आप उसे फॉलो करो, ये वाला मेथड मत। हाँ, यहाँ पर देखो ओपन SSL मेथड है, वो ये फॉलो अप कर सकते हो। ओपन SSL passwd -1 salt यूजर जो भी है एंड पासवर्ड। just copy this hash and put it in a passwd file। so once you put this information, उसके बाद आप स्विच कर सकते हो उस यूजर में, एंड यू कैन सी यू आर अ रूट। सिंपल। अभी राइटेबल होना चाहिए तब जाके होगा, अदरवाइज नहीं। सो राइटेबल है कि नहीं होगा इसे देखें। ऑब्वियसली ls-la कमांड का यूज करके आप लोग देख सकते हो कि वो राइटेबल है कि नहीं। ओके, ये एक हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, राइटेबल। ओके, यहाँ पे कुछ स्क्रिप्ट दिया है मैंने, उस स्क्रिप्ट का यूज करके भी आप हैक कर सकते हो। फाइल रीड अब्यूजिंग, ओके, फाइल रीड अब्यूजिंग चैलेंज, तो ये भी एक है। रीडेबल का यूज करके, रीडेबल है फाइल्स, और कौन सी रीडेबल है, CPIO अब्यूजिंग है या गिट अब्यूजिंग है। तो रीडेबल आप यहाँ पे आ जाओ, क्या बताया मैंने, CPIO। ये तो फाइल रीडेबल, ये क्या है, फाइल रीडेबल से क्या होता है, हम लोग कोई भी आर्बिट्री फाइल को, यू कैन रीड एनी फाइल्स, आर्बिट्री फाइल हो जो भी है उसे हम लोग रीड कर सकते हैं। ऑब्वियसली फिर हैश मिलता है, यू विल गेट अ हैश, एंड बाय क्रैकिंग द हैश यू विल गेट अ पासवर्ड, राइट। सो जस्ट कॉपी दिस पासवर्ड एंड लॉग इन इट रूट, सिंपल। तो ये है रीडेबल अब्यूजिंग। चैलेंज नंबर 7 में डॉकर अब्यूजिंग है,
डॉकर अब्यूजिंग इंटरेस्टिंग पार्ट है। ओके, डॉकर अब्यूजिंग देखते हैं हम लोग। डॉकर अब्यूजिंग हुआ है आपका? हेलो, हाँ विशाल। और डॉकर अब्यूजिंग हुआ है? हाउ टू? नहीं नहीं नहीं, नो नो नो। ओके, ऑलराइट। So when I log in this user 16 and type here the ID command, it show me you are user 60, correct? बट लास्ट में हम लोग देखे तो यहाँ पर लिखा है ये यूजर डॉकर मतलब एक कंटेनर को मैनेज करने वाला यूजर है। सो डॉकर जो होता है ये डॉकर ये एज अ रूट रन होता है सपोज, मतलब होता है। बट उस कंटेनर को, उस डॉकर को कौन जो भी यूजर असाइन किया है वो भी रूट को एक्सेस कर सकता है थ्रू द डॉकर, बिकॉज डॉकर को रन करने के लिए रूट होना जरूरी है, रूट का एक्सेस होना जरूरी है, रूट का उसे सपोर्ट होना जरूरी है। मतलब डॉकर तो रन हो रहा है रूट की वजह से, बट उसको मैनेज करने वाला ये नॉर्मल यूजर है। द नॉर्मल 60 यूजर इज 60। सो लाइक एक गुड उसके लिए ये है न्यूज की नाउ लेट अब्यूज डॉकर एंड कन्वर्ट प्रिविलेज जो भी हमारा नॉर्मल उसे हाई प्रिविलेज में कैसे कन्वर्ट करें। तो हम लोग छोटा सा ट्राई करके देखेंगे जीटीएफ पे डॉकर है कि नहीं, नहीं होगा तो फिर कैसे करें। डॉकर है, तो डॉकर 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 अब्यूजिंग कैसे करें। यहाँ पे नहीं कर सकते क्या? हाँ कर सकता है। तो डॉकर ये है सूडो वाला शायद। ओके, तो मैं ट्राई करके देखता हूँ होता है कि नहीं। हो गया। अब मुझे एक्सेस तो मिला है रूट का, बट किस रूट का एक्सेस मिला है? डॉकर कंटेनर का, नॉट ये वाला कंटेनर। कौन सा? मतलब रियल वाला नहीं मिला है। लेट मी ट्राई टू चेक क्या वहां पर फ्लैग है। ls cat root.txt। हाँ है, मतलब हमें देखो मैंने यहाँ पर क्या टाइप किया है। ओके ओके, मैंने यहाँ पर टाइप किया है डॉकर को माउंट किया है मैंने, वॉल्यूम उसका जो है ये ओरिजिनल फिजिकल सिस्टम का मैंने क्या किया है वॉल्यूम या जो माउंट पॉइंट होता है वो MNT, डॉकर के MNT को माउंट किया डॉकर के MNT में, और फिर वो MNT फाइल को मैंने एक्सेस किया, शेल टर्मिनल को एक्सेस किया। तो अब ये मुझे एक्सेस तो मिला है डॉकर का, बट मैं ओरिजिनल फिजिकल जो स्पेस है, फिजिकल जो सिस्टम है, अभी डॉकर कंसेप्ट पता है सबको? डॉकर कंसेप्ट थोड़ा सा पता है, एक सेकेंड में आपको दिखा देता हूँ डॉकर कंसेप्ट। Okay, so what is Docker and how to use container? Okay, ये मेरा फिजिकल सिस्टम है, करेक्ट। लिनक्स फिजिकल सिस्टम है मेरा, लिनक्स में मैं यूज कर रहा हूँ Ubuntu। Okay, now I need a multiple number of operating system. For example, I need Ubuntu, I need CentOS and Debian also, but मेरे पास सिस्टम नहीं है। जैसे हम वर्चुअल बॉक्स की बात करते हैं वैसे ही कंटेनर होता है, वैसे डॉकर होता है, LXT वगैरह जिससे हम बात करते हैं। तो वर्चुअल बॉक्स और डॉकर में क्या फर्क है? वर्चुअल बॉक्स हैवी है, डॉकर बहुत ज़्यादा लाइट है।
बट बोथ आर वर्किंग लाइक सिमिलर काम वो करते हैं। तो मैंने मेरे फिजिकल सिस्टम पे क्या किया, आई जस्ट पुट डॉकर हियर, राइट। तो ये मेरा डॉकर यहाँ पर मैंने छोटा सा इंस्टॉल किया एज अ हाइपरवाइजर। मेन सिस्टम में मैंने यहाँ पर डॉकर इंस्टॉल किया। ओके, जैसे कि वर्चुअल बॉक्स है। नाउ वहां पर हम लोग ने इमेज पुल किया है। अब इमेज पुल किया क्या मैंने यहाँ पर, मैंने उबंटू का इमेज पुल किया, एकदम छोटा लाइट वेट है, 100 MB का लाइट वेट उबंटू इमेज है। तो अब मैं उबंटू सिस्टम 100 MB में क्या कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ। ये ज्यादातर रिपोजिटरी या अनवांटेड थिंग्स अपलोड डाउनलोड नहीं करता है, जो भी शेयर एक्सेस के लिए होता चाहिए उतना ही वो डाउनलोड करके आपको एक्सेस देता है। उबंटू यहाँ पर मैंने रन किया, मुझे चाहिए अभी सेंटोस सिस्टम, तो मैं यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरा भी पुल कर रहा हूँ, सेंटोस। मुझे चाहिए काली सिस्टम, सो आई जस्ट पुट हियर काली। ओके, नाउ व्हाट हैपन हियर, यहाँ पे मैंने 3 ऑपरेटिंग सिस्टम रन किए हैं ऑन अ सेम लिनक्स बेस। ओके, एक लिनक्स पे, जैसे कि वर्चुअल बॉक्स पे हम लोग करते हैं। और इवन डॉकर में आई जस्ट वांट टू क्रिएट अ वेबसाइट ऑन अपाचे सर्विसेज के निंजिस का जो होता है वेबसाइट, उसका यूज करके मुझे करना है, तो मैं यहाँ पर वो भी इमेज पुल कर सकता हूँ। अपाचे सर्वर को भी मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया। ओके, अब यहाँ पर लोड बैलेंसिंग नहीं हो रही है, तो मैंने सेम अपाचे का क्लोन किया और यहाँ पे दूसरा कंटेनर पैरेलल कंटेनर क्रिएट किया। तो ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है डेवलपर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, या लाइक कंटेनर मैनेजमेंट जैसे जो मिलते हैं वो। तो ये हमारे छोटे छोटे कंटेनर है, उबंटू एक कंटेनर है, ये सब कंटेनर है। अब हाँ बोलो। Vishal. हाँ, So these containers get IP, na? exactly correct. Obviously they will get the IP address. So this Linux physical machine will connect to this Docker using Breeze interface. Breeze. हाँ, अब वहाँ पे भी again there are number of concept. Okay, so once you Okay. start your Docker system and pull the number of images, then it will assign IP address itself. 1 second. Okay, it will assign IP address itself, like वो अलग अपना खुद का IP address ranging create करेगा and it will assign the IP address. So if you want to like make sure that your two operating system having the same in a same network और सेम नेटवर्क IP एड्रेस में होना चाहिए, तो आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा वैसे। ओके, आपको इसे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ये अपने आप ऑटोमेटिकली क्या करेगा, रैंडम नेटवर्क क्रिएट कर सकता है या IP रेंज में भी कर सकता है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन कि आप किस तरह से उसे कॉन्फ़िगर कर रहे हो, इमेज को कैसे कॉन्फ़िगर कर रहे हो। तो मुझे जो IP मिला है डॉकर का वो है 172.70.0.2, बट माई IP एड्रेस इज, मेरा जो IP एड्रेस है वो क्या है, IP मेरा फिजिकल IP एड्रेस जो है वो है 192.168.1.216। ये डिफरेंट IP एड्रेस है, तो डॉकर का IP एड्रेस डिफरेंट रहेगा। करेक्ट, ऑब्वियसली वो वर्चुअल बॉक्स पे या वर्चुअल बॉक्स जैसे ही काम करता है, तो वो अपना IP एड्रेस डिफरेंट लेता है, या नेटवर्क ब्रिज IP एड्रेस आपको सिलेक्ट करना है, NAT का करना है, तो वो आपको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। Okay. So it is very light. Sorry? Docker light. Lightweight, correct. Docker is a lightweight actually. हाँ, it's actually a nice tool to work on Docker. अब यहाँ पर मैंने क्या करना है कि how to escalate privilege escalation using the Docker. यहाँ पे लिनक्स सिस्टम पे लिनक्स सिस्टम विच इज कंसिडर्ड दैट लिनक्स सिस्टम, फिजिकल लिनक्स सिस्टम जो है हमारा हैक्सुडो LP मशीन है, LP मशीन। ओके, एंड देयर आर नंबर ऑफ यूजर्स, सो वन यूजर इज रूट एंड वन यूजर इज यूजर 60 यूजर हैविंग Docker privilege or Docker access. Now when I execute this command, which command? When I execute this command,
docker run -v mounting the mnt. so mnt is nothing but docker mnt. docker के mnt में हम लोग ने क्या माउंट किया है, फिजिकल सिस्टम का स्लैश. रिमेंबर दिस थिंग. ओके, यहाँ पर क्या किया है मैंने, फिजिकल जो सिस्टम है उसमें जो भी फाइल सिस्टम है उसका स्लैश कहाँ पर माउंट किया, ये माउंट किया मैंने डॉकर के उस इमेज के mnt फोल्डर में. ओके, अब मैं आपको ऊपर से और एक एग्जांपल दिखा देता हूँ. लेट मी एग्जिट. सेम कमांड मैंने यहाँ पर फायर करना है और हम यहाँ पर etc को माउंट करते हैं. अब देखते हैं. नो सच फाइल और यहाँ पे sh क्या फाइल है, sh शेल. हाँ ये हो गया. सॉरी, शायद कुछ मैंने गड़बड़ किया था, पता नहीं क्या हुआ है. ओके, यहाँ पर हमें क्या करना है, etc. Actually, we want to mount slash on slash mnt, right? हाँ, स्लैश mnt के ऊपर हमें माउंट करना है. Yes, yes. लेकिन लगता है कि slash etc will not mount on slash mnt. वन सेकंड में वो भी रीचेक कर लेता हूँ. डॉकर रीच विंडो. ओके, शायद कुछ कमांड गलत होगी. अभी सब कमांड याद रखना नॉट पॉसिबल. करेक्ट. Of course. हाँ, ये यहाँ पर देखो डॉकर रन. देखो वही तो है, मैं तो वही तो कर रहा था ना. आई डिड नॉट. ओके, तो थोड़ा सा मैंने क्या किया है, chroot and mnt वगैरह थोड़ा ऐड किया एक्स्ट्रा. तो वो हम लोग बिप आउट करते. लॉग डॉकर टाइप किया मैंने, रन द कमांड -v फॉर द वैल्यूम विच वैल्यूम वी वांट टू माउंट etc. अभी etc मेरा फिजिकल सिस्टम का, जहाँ पर मेरा यूजर 16 रनिंग है, Right. का मैंने वैल्यूम माउंट करना है. कहाँ पे, स्लैश mnt. ये स्लैश mnt क्या है, डॉकर का. ठीक है, डॉकर का एक इमेज है जिस इमेज का नाम है अल्पाइन. ये ऑलरेडी है पुल किया हुआ, या हम लोग खुद पुल कर सकते हैं इससे. और -it का मतलब होता है टर्मिनल एक्सेस, शेल एक्सेस. ओके, तो ये मैंने क्या, हाँ मैंने क्या, एंटर. नाउ जब मैं pwd टाइप करता हूँ तो मुझे स्लैश तो दिखा रहा है, बट जब मैं ls किया तो ये मुझे कौन से फाइल्स दिखाएगा, ये मुझे etc फोल्डर के अंदर के फाइल्स दिखाएगा. ओके, Okay. तो हाँ, तो ये मैंने No, actually नहीं. No, you mount slash, not etc. हाँ, ये स्लैश का दिखा रहा है, वही तो मैं सोच रहा हूँ. ओके, ये mnt. एक सेकंड, mnt के अंदर वो माउंट हुआ है शायद. शैडो. हाँ, सॉरी, मेरा एक और स्टेप करना चाहिए था. करेक्ट. ये जो फाइल है etc. ओके, मैं वापस से आपको दिखाता हूँ. मैं एक स्टेप आपको नहीं बताया. हाँ, वापस से मैं करता हूँ. etc तो हमें माउंट करना है स्लैश mnt के अंदर, डॉकर के mnt के अंदर. मैंने एंटर किया. नाउ cd करते हैं mnt में, बिकॉज वो माउंट कहाँ पर है, mnt के अंदर. mnt पर mount हुआ. हाँ, ls किया, etc फोल्डर माउंटेड इन mnt फोल्डर. नाउ यू कैन कैच शैडो फाइल. ये शैडो फाइल किसकी है, etc की है. और वो etc किसका है, फिजिकल सिस्टम के etc है. System के etc. हाँ, अब वापस से मैं बैक जाता हूँ
और वापस से हम लोग क्या करते हैं, etc की जगह पे हम लोग ओनली स्लैश करते हैं। एंड नाउ लेट्स सी, cd mnt में आया मैं, ls, तो ये अब ये स्लैश फाइल्स माउंट हुए mnt में, एंटायर स्लैश फाइल। ओके, इसमें से मैं रूट में जाऊंगा और फिर यहाँ पर root.txt फाइल है। सो mnt में वो माउंट हो रहा है। ओके, ये mnt पे माउंट हो रहा है। तो इस And तरह Vishal, one thing, से this L file is the image, Docker image, right? correct docker image, we just pull the docker image using the user 60। ओके, सो जो भी डॉकर रन करेगा यूजर, जो भी इमेज रन करेगा यूजर हमारा 60, वो रन होगा बट एज अ रूट परमिशन जैसे वो रन करेगा। रूट है उसके पास एक्सेस। ओके, डॉकर को मैं यूजर 16 रन करता हूँ, देन आई एम अ रूट यूजर फॉर दैट पर्टिकुलर डॉकर रन करने के लिए, जो कोई भी मैं इमेज रन करूंगा तो। सो व्हेन, हाँ, अब ऑब्वियसली मैं उस इमेज में अल्पाइन इमेज में जाता हूँ तो मुझे रूट एक्सेस ही मिलता है, बट वो डॉकर रूट एक्सेस मिलता है। और उसमें हम उस डॉकर इमेज में हमारे जो स्लैश है उसको माउंट किया। यस, तो वी कमांड से और माउंट कमांड से हम लोग वो करते हैं, हमारे फिजिकल सिस्टम को माउंट करते हैं। और वो जो अल्पाइन का रूट एक्सेस है यहाँ पे, ये अल्पाइन का रूट एक्सेस है, ना कि हमारा ओरिजिनल रूट। सो अल्पाइन इमेज का रूट से हमने जो माउंट किया है, हाँ, जो माउंट किया है उसमें हम लोग कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास उस टाइम पे रूट है। ये होता है डॉकर। गॉट इट? और माउंट करने के लिए कोई ऑप्शन प्रिविलेज का माउंट करने के लिए, माउंट करने के लिए क्या तो परमिशन लगता है क्या? नहीं, परमिशन नहीं। हाँ, ओके। अब जो यूजर है आपका 60, सो यूजर को हमें क्या करना है, कोई भी यूजर होगा, आईडी कमांड टाइप करो। एक नॉर्मल यूजर है, हाँ, एक नॉर्मल फिजिकल सिस्टम मैंने ओपन किया जहाँ पर एक यूजर है 16। आई एम नॉट यूजिंग डॉकर, आई डोंट नो डॉकर क्या है, कुछ पता नहीं मुझे। मैंने यूजर को लॉगिन किया, आईडी कमांड टाइप किया, एंड मुझे ये पता चला कि उस यूजर को डॉकर को मैनेज करने का परमिशन है। वो कैसे पता चला? आईडी कमांड से। नाउ हम लोग क्या करेंगे, हमारा टर्न एक्सप्लॉयटेशन का। नाउ आई कैन एक्सप्लॉयट दिस यूजर। फिर डॉकर का यूज करेंगे, अल्पाइन कमांड का यूज करके, एंड फिर हम लोग अंदर जाते हैं, एंड देन उसके बाद हम लोग रूट को मैनेज करते हैं। फिर हमारे पास this user 60 can manage Docker. Correct. That's why we can exactly. If user 16 Docker का permission नहीं है, then you cannot use Docker for exploitation. So using ID command we can get this like Yes. the permission this user has or not. Right. Okay. So ये Docker का हुआ। लास्ट चैलेंज इज वाइल्ड कार्ड अब्यूजिंग। अभी आपके ऊपर मैं आपको दे देता हूँ कि वाइल्ड कार्ड चैलेंज क्या होता है, कैसे करना है उसे। ओके, वाइल्ड कार्ड अब्यूजिंग बहुत इजी है। ओके, बहुत इजी है। इजी नहीं है एक्चुअली, वो भी हार्ड ही है, बट आप कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, वाइल्ड कार्ड चैलेंज या वाइल्ड कार्ड करो, लीट विलो करो, या गूगल पे कोई भी इस पे आप सर्च कर सकते हो, एक्सप्लॉइटिंग द वाइल्ड कार्ड फॉर प्रिविलेज एस्केलेशंस। देखो वाइल्ड कार्ड क्या होता है, कैसे करना है, थोड़ा सा क्रिटिकल है, बट आप कर सकते हो। ठीक है, ये एक लास्ट टॉपिक है, ये आपके ऊपर मैं दे देता हूँ। ओके, तो ये प्रिविलेज एस्केलेशंस के टॉपिक है हैक सुडो एलपी बॉक्स पे। ये डाउनलोड करना है आपको 1.3 GB का डाउनलोड। Vishal, it is some issue because we download this and we want to. Can you please share your system?
ज्योतिमा रन कधी येणार आहे? काय फक्त त्यांना शाहीन, आपका हैकिंग में कुछ हुआ है पहले? हेलो, Sorry, I can hear you. I ask you like, do you know, yeah, do you have any like related hacking related knowledge है? Hacking related knowledge थोड़ा सा। थोड़ा सा है, बट आप तो बहुत जल्दी से कैप्चर कर लेते हो, जो भी मैं सिखाता हूँ बहुत ज्यादा कैप्चर करते हो। Actually, lack of practicing. Capture, but as my experience, इतने जल्दी इतना मतलब कैप्चर करना नॉट अ जॉब, ठीक है? okay. लेकिन practice कम होता है because कम होती है प्रैक्टिस आपकी? yes, yes. ओके, We have lot of stuff. That's why we have to be busy on different work. That's why practice अगर ज़्यादा होगा ओके शेयर अपना, ओके आप आपका स्क्रीन शेयर करो। हाँ मामून भाई भूख लगी है। विशाल हाँ we download this Hexago search OVA. ओके, Hexago 2.0. Okay, over file. So we try to install this on actually VM network and Breeze both are same. VM network is also Breeze. This is the issue, like missing the shared heading. Yes, we got this problem and then we installed this on Oracle VM Virtual Box Manager. We installed this. यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन ये वर्चुअल बॉक्स के लिए कंफर्टेबल है, वर्चुअल एंड वीएम के लिए कंफर्टेबल है। और वीएम पे ज्यादातर यूज नहीं किया है, बट वर्चुअल बॉक्स के लिए ये बनाया हुआ है। वर्चुअल बॉक्स का जो इशू है
रिसोर्स का इशू है, रैम का इशू है, इसलिए स्पेस का इश्यू है। yes, that's why we use this ESX. Can you start here on your system and उसे हैक करने के लिए किसी और सिस्टम का यूज कर सकते हो? यहाँ पे स्टार्ट कर दो सर्च वाला और दूसरा सिस्टम यूज करो। आपके पास दूसरा डेस्कटॉप है जहाँ पर काली है? यहाँ पर खाली है। ओके Also, I installed Xcode LPL. Xcode LPL also I installed. so same issue on LP also, right? LP को मैंने ट्राई नहीं किया। Let me try LP. Yes, same issue. Okay. Maybe it will not competition with VMware. It will compete with Oracle VM. ये बना ही नहीं है उसके लिए। Yes. ये वर्चुअल बॉक्स के लिए बना है ओनली। एक मैडम मेल आया है वो बार-बार हेलो हेलो। सर्च का आपको आईपी मिला? हाँ आईपी मिला 100.109। the enumeration start करो in mapping and all. Actually, we had a meeting at 5. Don't know how. Manage. Hello, Vishal. Can you hear me? Actually, we have a important meeting right now at 5. So that it is okay that we will practice and give you the screenshot later. हाँ why not, sure, please.
And could you please share the document for today's session or some link? Definitely, I will send today's document or materials ये from A29 Sweta. And also we shall please provide us some document as I said previously that some documents so that we can. I will provide all documents. Okay. Okay. Institutions में सभी के documents मैं आपको provide कर दूंगा आज शाम तक. Okay. And also what Sorry. research we will do. Some home task. Provide some home task so that we can do it at our own. मुझे समझ में नहीं आ रहा है मुझे. प्रियंका आप बोल सकती हो? Vishal, can you give us some exercise or home tasks so that we could, Okay. can do this and submit to you? Okay, got it. Exercise like go through this Hacksudo search box, okay, and complete the Hacksudo LP. Last वाला जो practice था मैंने वाइल्ड कार्ड का बताया है वो कर लो, okay. और आई थिंक तो शाहीन मुझे फेसबुक पे कनेक्टेड है, करेक्ट? हाँ, तो मैं आपको वहाँ से भी चाहिए तो एक्सरसाइज दे दूंगा जो भी है प्रैक्टिस करने के लिए. And also what about your health condition right शाइन एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि आपका नॉइज, आप जब बात करते हैं बहुत ज्यादा नॉइज आती है. प्रियंका जब बोलती है तो ओके, उनका नॉइज नहीं आता है. कैन यू प्लीज टेल मी क्या बोल रहे हैं मतलब? Shine is asking you how is your physical condition right now? फिजिकल कंडीशन You are नहीं. hospitalized for 3 to 4 days. हाँ, राइट नाउ आई एम ओके, आई एम गुड. थोड़ा सा इशू हुआ था, बाकी ओके. ओके, एंड थैंक यू फॉर आस्किंग शाहीन. Welcome. ओके गाइस, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे. और मैं चाहिए तो मैं मेरा जब लाइव स्ट्रीमिंग रहेगा आई विल डेफिनेटली कांटेक्ट यू शाहीन, एंड आप वहाँ पे आ जाओ फिर, ठीक है? Okay. ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय.